Hello everyone, welcome to the channel SSB World FDA online app. So basically आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ that is very important from the perspective of your lecturate, from the perspective of your group discussion, from the perspective of building your knowledge. And this is a very hot and current topic which we call it as privatization. जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे privatization के बारे में we are going to talk it about today. So basically आपको बचपन से पता होता है व्हाट इज़ प्राइवेट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, है ना, और आप इस चीज़ में डिफ्रेंसिएशन करना जानने लगते हो. बट एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन क्या है ये आपको इस लेक्चर में जानने मिल सकता है. हमें लगता है कि एवरीथिंग विच इज़ टर्निंग टू बी नॉट एज अ गवर्नमेंट फर्म इज़ called as privatization, but no, it's not true. There are certain restrictions, there are certain guidelines, still there are certain norms which has to be checked and cleared to go for privatization. So let us understand what is privatization in this video. It means the transfer of ownership, management and control of the public sector enterprises to the private sector. Okay, so basically ownership, as you can see here, right? Management is also very important because there are there are companies formed, there are people who manage a business. So management is also to be transferred, and control of the public sector enterprises to the private sector. Public sector enterprises are nothing but the government owned or government majority companies or institutions which are majorly run by the government are called public sector enterprises, but transfer of their ownership, management and control of the public sector enterprises to the private sector is basically defined as privatization. It is also used as a metonym for deregularization when a massively regulated private firm or industry becomes less organized. So basically deregulation is one of the synonym which is used for privatization, and regulated private firm or industry becomes less organized. So basically whenever we say that deregularization हुआ है या deregulation हुआ है, so that means privatization हुआ है. It is a metonym of deregulation. Okay, government services and operations may also be denationalized, privatized. Okay, so basically government services में जब deregulation होता है, so that is also called privatization. Some instances involve law enforcement, revenue collection and prison management. So this is also instances of deregulation. ये भी चीज़ें होती हैं. All owned and controlled, and norms should be made by the companies who are owning it. So अगर government के हाथ से private में जाता है, किसी दूसरी body के हाथों में जाता है, it goes in the hands of other body. So definitely he has the major role to play for making the norms of that particular company. Okay. Okay, so let us understand what is objective of privatization. Okay, objective क्या है? Why do we go for privatization? So basically objectives are providing strong momentum for the inflow of FDI. FDI जैसा कि आप देख सकते हो foreign direct investment के लिए बहुत important है. foreign direct investment कहते हैं इसे. अगर आप FDI के बारे में सर्च करोगे तो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा. इसके बारे में भी आप काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो. प्राइवेटाइजेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द इनफ्लो ऑफ FDI. सो इनफ्लो होता है FDI का. ओके, इनफ्लो होता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है. द इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ FDI इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी. सो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हाउ FDI इज इम्पॉर्टेंट. ओके, so FDI improves the financial strength of the economy. So economy के लिए it's beneficial. Indirectly it is affecting the economy of any nation. That's why we say that privatization is really helpful. Let's move forward. Okay, let's know it further कि और क्या क्या benefits हैं privatization के. So the other benefits are improving the efficiency of public sector undertakings. बेसिकली एफिशिएंसी को भी हमने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हुई हैं कंपनीज, अच्छा काम करना शुरू किया है, उनकी प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है. ओके, द एफिशिएंसी ऑफ PSUs इज इम्प्रूव्ड बाय गिविंग देम द ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस. ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस मीन्स आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो. यू हैव द पावर एंड द अथॉरिटीज टू मेक योर ओन डिसीजंस, टू मेक योर ओन रूल्स. ओके,
एक फ्रेमवर्क होता है, आपको उससे अडहेयर करना है, बट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्लाइट चेंजेस टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशन सूटिंग योर कंपनी कैन बी डन बाय द कंपनी हु इज ओनिंग दैट. सो प्राइवेटाइजेशन में बहुत अच्छा फायदा होता है दैट आपको खुद का अपने रूल्स बनाने का एक कंट्रोल होता है आपके हाथ में. Some companies were given special categories of नवरत्न एंड मिनी रत्न. आप सुनते होंगे कि ये मिनी रत्न कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी है, ये प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट है. प्लीज अंडरस्टैंड इट. और आपने देखा होगा कि कई सारे लोग इसमें जॉब करने के लिए परेशान रहते हैं. वाई? बिकॉज द पर्क्स आर सो गुड, दे पे वेरी गुड एंड द ग्रोथ इज सो लॉन्ग, सो गुड. सो इसलिए लोग यहाँ पे काम भी करना चाहते हैं. सो दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन इज गुड. लेट्स गो फर्दर. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या क्या है, उसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, सो वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज. देयर आर टू वेज टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन. द फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है. गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन द फॉलोइंग टू वेज. ये किस तरह से होता है, लेट्स नो इट फर्दर. By the withdrawal of government from the ownership and management of public sector companies. So that is done by the government, that it withdraws its management from the government company. जैसे आपने देखा होगा कि अभी एयरलाइंस का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि पहले जो एयर एशिया था वो क्या था, जमशेद जी टाटा का एक सपना था, जैसा कि रतन टाटा ने कहा था कि एयर एशिया, एयर इंडिया वाज द ड्रीम ऑफ जमशेद जी टाटा, जिसके बाद उसका वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा चुका था. बट नाउ अभी आपने देखा है कि उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है. अगेन इट वेंट टू द हैंड्स ऑफ रतन टाटा. क्यों? क्योंकि काफ़ी लॉस में चल रहा था. तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, विथड्रॉल किया है अपना ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से. ओके, द नेक्स्ट इज बाय द आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो आउटराइटली इफ यू से सोल्ड इट, इफ यू सेल इट, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ और द वेज ऑफ डूइंग द प्राइवेटाइजेशन. लेट्स गो फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है जिसमें जो इन्वेस्टेड चीज़ें होती हैं उसको गवर्नमेंट खींच लेती है. तो आप देखते होंगे कि कई जगह पे आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी के इतने शेयर लिए थे, 50 मोर देन 50% और 51% शेयर्स जिस कंपनी के होते हैं उसको हम गवर्नमेंट ओन कंपनी कहते हैं, उस कंपनी के शेयर्स जिसके पास गवर्नमेंट के पास होते हैं. तो सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने लगती है. जैसे डिबेंचर्स इशू होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स इशू होते हैं, और फिर उसको सेल करना, जो भी चीज़ें थी उनको वापस से उससे मनी रेगुलेट करके उससे अपनी सारी चीज़ें हटा लेना. दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ going for privatization. Privatization of the public sector undertaking by selling off parts of the equity of PSUs to the private sector is known as disinvestment. यहाँ भी होता है, आप इक्विटी बेच देते हो. इक्विटी इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो भी होती है शेयर्स, एसेट्स जो होते हैं कंपनी के, दोज आर सोल्ड टू द कंपनीज हु आर द प्राइवेट मैनेज्ड कंपनी और प्राइवेट फंडेड कंपनी. तो ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है. लेट्स मूव फर्दर. So, however, there are 6 methods of privatization. तो methods मैं आपको बताती हूँ. पब्लिक सेल ऑफ शेयर, जैसा कि मैंने आपको शेयर्स के बारे में ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में बताया है. पब्लिक ऑक्शन, ऑक्शन भी होता है. आपने एयर इंडिया का एग्जाम्पल देखा होगा दैट वहाँ पे ऑक्शन हुआ था. तो ऑक्शन का भी एक वे गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है. पब्लिक टेंडर्स, टेंडर्स जैसा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर करते होगे तो यू मस्ट बी सीइंग कि टेंडर्स इशू होते हैं. गवर्नमेंट बोलती है दैट वी आर गोइंग टू सेल दिस, who are going to quote their prices and all those things. एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है. तो टेंडर्स भी होते हैं. डायरेक्ट निगोशिएशंस भी हो सकता है. इसके लिए जैसे कि आप देखते हो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी पहुंच होती है, तो दे डायरेक्टली परचेज इट, है ना. BSNL का भी आप एग्जाम्पल, अभी आगे इन द स्लाइड्स आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जाम्पल्स, बट आपको धीरे धीरे मैं एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उस चीज़ में थोड़ा सा माइंडसेट अपना अक्वायर कर सको. ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस दैट वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स और बाय द म्यूनिसिपैलिटी. तो कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस भी होता है. ओके, म्यूनिसिपैलिटीज और स्टेट्स के थ्रू जो भी कंट्रोल था उसको भी आप ट्रांसफर करके प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो. लीज विद अ राइट टू परचेज, ये एक कंडीशन है, राइट टू परचेज. ओके, तो अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो एंड देन यू पुट अ कंडीशन दैट आई विल परचेज इट, तो ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है. जैसे कि आप देखते होगे रेलवेज की बात चल रही थी प्राइवेटाइजेशन की, तो लीज होती है उसमें. लीज मतलब आप उस चीज़ को फॉर अ सर्टेन टाइम इंजॉय एंड मॉडिफाई करने के लिए किसी और को दे रहे हो, बट एक उसमें एक क्लॉज पुट कर रहे हो दैट यू विल टेक इट बैक. तो आपके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, बट स्टिल अभी कुछ टाइम के लिए उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज गोइंग फॉर सम अदर हैंड. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग द प्राइवेटाइजेशन. ओके, let's understand what are the pros of privatization. So pros of privatization are as following.
इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस, बेसिकली आपको ये दिखा होगा कि कई चीज़ें जब प्राइवेटाइज हुई तो उसका कस्टमर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कस्टमर्स का बेटर हुआ। आप BSNL को ही देख लो, है ना, बट अभी भी वो प्राइवेटाइज नहीं हो पाया है। इसलिए जब भी टेलीकॉम कंपनीज में प्राइवेट कंपनीज ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, लाइक भारती मित्तल, एयरटेल, है ना, वोडाफोन, आइडिया, सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन केम इनटू द कॉम्पिटिशन्स, परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हुआ, हमारे नेटवर्क्स काफ़ी सुधरे और आज हम 4G एंड 5G के लेन पे आ चुके हैं। पॉलिटिक्स डज नॉट इंटरफेयर। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है प्राइवेटाइजेशन का, वो प्योरली एंड पर्पसफुली ग्रोथ से रिलेटेड है। अगर ग्रोथ है तो प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली होगा, अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आप उसमें पॉलिटिक्स नहीं डाल सकते। ओके, शॉर्ट टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म आउटलुक मतलब ये है कि प्रॉफिट मोटिव आउटलुक होता है, बहुत लॉन्ग टर्म आउटलुक नहीं होता है कि इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। शॉर्ट टर्म आउटलुक है कि हमें मेनली कोई चीज़ देखनी है, वो है बिजनेस एंड इकोनॉमी। इनकरेजमेंट फॉर शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ रिटर्न्स, येस। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि जब प्रॉफिट होगा तो शेयर्स की वैल्यूज बढ़ेंगी, शेयर की वैल्यूज बढ़ेंगी तो ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, उनको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा, तो एक तरह से कंपनी के एसेट्स एंड इक्विटीज़ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन, एज आई हैव गिवन यू टेलीकॉम्स एग्जाम्पल, तो कॉम्पिटिशन डेफिनेटली इंक्रीज होता है। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल। तो ये सारे प्रोज हैं प्राइवेटाइजेशन के। प्लीज listen all these things very carefully because you are definitely going to get this topic in your lecturate either or in your group discussion. Okay, cons of privatization, देखो कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ते हो तो you should be knowing pros and cons so that even if it comes as a topic in group discussion you are able to tell each and every part. क्योंकि आप अगर लेक्चरेट बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो बोलना है आपके माइंड में वो सेटल्ड है, बट GD में यू डोंट नो विच वे यू आर गोइंग टू गेट द काउंटर, सो आपको कोर्स भी आने चाहिए। ओके, सो नेचुरल मोनोपोली, मोनोपोली कैसी होती है? मोनोपोली मतलब ये होता है कि सपोज जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अभी फार्मिंग का भी जो हो रहा था दैट वाज मोर सॉर्ट ऑफ ए प्राइवेटाइजेशन ही कहना चाहिए उसको, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और फार्म बिल वापस ले लिए गए। तो अब कोई एक कंपनी है, ही हैज़ मोर ऑफ वेल्थ, बहुत रिच है, जैसे आप अंबानीज को ही देख सकते हो कि जियो आया तो फिर जियो की जो पॉलिसीज आई तो एक मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी, जिससे फ्री पॉलिसी के अलावा कोई और कंपटीशन में आ ही नहीं पाया कि वो फ्री ऑफर कर पाए। दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड सो स्ट्रॉन्ग ऑफर कि सारी जो भी कस्टमर्स थी वो सारे जियो में स्विच कर गए। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि आप अपने रूल्स खुद रेगुलेट कर सकते हो। द मोमेंट ट्रेन रेलवेज टर्न्स इनटू प्राइवेटाइजेशन, एक सबसे बड़ा कॉन्स होने वाला है वो है नेचुरल मोनोपोली का। तो मोनोपोली तो हो ही जाएगी बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स इतने होंगे नहीं। प्राइवेट प्लेयर्स बनने के लिए यू हैव टू होल्ड अ लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, और इंडिया में इतने रिच प्लेयर्स अभी हैं नहीं। तो इसलिए एक कॉन्स होता है दैट इज नेचुरल मोनोपोली। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट भी इक्वली मैनेज करना चाहिए कंट्री में। लैक ऑफ रेगुलेशंस, प्राइवेटाइजेशन तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत ही ग्लॉसी सा कॉन्सेप्ट लगता है, बट रेगुलेशंस अभी भी उसके लिए प्रॉपर फ्रेम नहीं की है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्स है। लो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, देखो आप एक बात समझो कि जब भी हम कोई कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो द फर्स्ट थिंग विच वी सी इज कि गवर्नमेंट इशूड है या प्राइवेट इशूड है। गवर्नमेंट इशूड है तो हमारे मन में एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है कि डेफिनेटली हमारा पैसा लॉस में नहीं जाएगा, बट इसी वजह से शायद हो सकता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स ज़्यादा होते हैं, शेयर होल्डर्स ज़्यादा होते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से एक लॉस ये होगा कि लो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज बहुत छोटी छोटी उस पर टूट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ किसी चीज़ का तो एक कंपनी का ये स्पिन ऑफ होगा, इस चीज़ के लिए स्पिन ऑफ होगा, ऐसे टूटेगी। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंपनीज इज अनदर कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। Okay, so this was the video to tell you that what is privatization and how it is to be done. मैंने आपको BSNL का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको रेलवेज़ का एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको कई सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट। आप अमेरिका में बहुत सारी डेवलपिंग एंड सुपर पावर नेशंस में प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू रेगुलाइज इट, एंड सबसे पहले आपको उसके लिए बहुत प्रॉपर चैनल बनाना ज़रूरी है। तो एनी वन ऑफ यू कैन गिव द लेक्चरेट नाउ ऑन टॉपिक ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एंड वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑल दोज पॉइंट्स, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू
fetch the points from the GTO in your group discussion or in your lecturate. So ladies and gentlemen, this was my video over telling you what is privatization and how it is to be done. I hope you have liked my video. Please share it, subscribe it, and do not forget to press the bell icon so that all of you get the notification of me and my next video, which are going to be very informative for you to see and to share it more further. Okay, so till the time everyone, Jai Hind.